हेलो रोहिणी। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। बच्चा आवाज आ रही है? यस सर। गुड। ठीक आ रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। नया तरीका ढूंढा हमने पढ़ने का। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। ये मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, डिस्प्ले ठीक आ रहा है बच्चा? आप लोगों को दिख रहा है? मुझे आप लोगों को एडमिट करना पड़ेगा सभी को ना, इसलिए हम वेट कर रहे हैं सभी आ जाएं।
आई थिंक कितने लोग अभी 15 40 15 हो गए पार्टिसिपेंट्स 11 ओनली पास नेट एक्सेस है वो अपने क्या बोलते हैं वीडियो नहीं यार देखते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हम साइड पे ठीक है ये जो आपका लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है सुनाई नहीं देता है कौन उसमें वेट कर लेते हैं लोग आ रहे हैं कोई है ज्वाइन करने वाला आई थिंक 10 मिनट्स शुरू करते हैं ना राइट तो कोई अगर आता है तो हम उसको ज्वाइन करवाएंगे ओके ठीक हम स्टार्ट करते हैं ठीक है
हो चलो। तो इसमें आप लोग अपना कैमरा वगैरह ऑन रखना है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आप जिसका नेट अच्छा चलता है, स्पीड अच्छी है, ब्रॉडबैंड वगैरह है, तो अगर ऑन कर सकते हो, ठीक है, जो वीडियो अपना ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो I'm audible to all of you? अच्छा, आवाज आ रही है? चलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। Okay, we start this lecture. So today's lecture is about unit 4, and as we have linear combination of vectors, linear secondary, other things. Start linear combination of vectors. We have studied vector space, right? We have studied vector space. Your chapter number 3, right? So लोग आ रहे हैं, हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कहेंगे उनको ज्वाइन करवाते रहेंगे, नो इश्यू फॉर देम। ठीक है, तो इसके बाद अब नाउ वी आर गिविंग आवर यूनिट नंबर 4, so you can understand. We'll discuss, I will explain everything. In case of any doubt, I will give you proper time to raise your doubt or for understanding. And it is a live class, it is more beneficial for all of you, right? So we start with the definition of vector space. So what is this linear combination of vectors? We have studied vectors. We all you all of know that we always define a vector over a field, right? And elements of the vector space are called vectors. Elements of the field are called scalars. Right? So here definition is linear combination of vectors. Linear combination means what we do, we take the elements of vector space and we call these elements as vectors, and at the same time we take elements of field and we call them scalars. It is also called scalar combination, right? So it is a basically expression. So here is the definition. B is a vector space over field F. A vector of the type alpha 1 x1. Alpha 1 is from field, x1 is from vector. If alpha so on, alpha x is called the linear combination of vectors x1, x2, so on, xn. With scalars alpha 1, alpha 2, so on, alpha. What we have done here? Basically, we have combined the scalars and the vectors, and we have represented them in linear combination expression in some way, right? This type of expression is called linear combination of the vectors x1, x2, so on. You got it? Any doubt? Right? We call linear combination. Then the next definition is linear span. What is this linear span? Linear span is the, again, right, we got linear span from linear combination. Basically, in a vector space, we can have many type of combinations, you know, linear combinations. Suppose
I take a simple example of R2. You know R2, order pair AB, right? Where AB are real numbers. In this case, suppose I take two order pairs. Two order pairs, for example, आप लोग जब पढ़ते हो बच्चा, अब नोटबुक एक रफ कॉपी हमेशा आप लोगों के पास होनी चाहिए, so that you understand things. जब मैं बोलता हूँ तो आप पेन डाउन करके इन चीजों को समझ सकते हो अपने पास, right? So in case of R2, suppose we have two elements of the vector space R2. One element is 0, other element is 0, 1. Both are different, right? 1, 0 order pair and order pair 0, 1. Right? Now I write linear combination. Order pair 1, 0 I name at x1. Order pair 0, 1 I name it at x2. Right? And to take many linear combination, you can take 2x1 plus 3x2 and it will become order pair 2, 3. You can check it out your notebook. You are doing it? बच्चा लोग कर रहे हो? Yes, sir. x1 को लिखो 1, 0 and x2 को आप लिखो 0, 1. Then you write 2x1 plus 3x2. 2x1 क्या बनेगा? 2 into 1, 0 plus 3 into 0, 1. तो 2 into 1, 0 बनेगा 2, 0 है ना, ऑर्डर पे 2, 0. और दूसरा ऑर्डर बनेगा 0, 3. 0, 3 0 को ऐड करोगे ऑर्डर 2, 3, राइट? तो देखो एक छोटा सा लीनियर कॉम्बिनेशन किया, उससे आपको 2, 3. ऐसे ही आप इस x1 बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस कर सकते हो, है ना? तो जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन मैं कर सकता हूँ ना, किसका, x1 x2 का, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उन सबका जो एक सेट होगा, the set of all possible linear combinations of x1 x2 is known as linear span of x1 x2. You got it? मतलब जितने भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे 2x1 3x2, 4x1 5x2, 6x1 7x2, इनफाइनाइट बहुत सारे बनते हैं, है ना, राइट? सो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप लोगों के बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं, जितने भी बन सकते हैं, राइट, उसको हम बोलेंगे लीनियर स्पैन. बेसिकली लीनियर स्पैन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर एलिमेंट्स. नाउ आई कम टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन. Let X be a vector space, then the set of all finite linear combinations of S is called linear span. We are setting all finite linear combinations, right? Because we are saying finite because the vector space we are taking in according to your syllabus, these vector space are finite vector spaces. We are not covering infinite case. That's why here write it. Otherwise, in some cases, we can have infinite combinations also. Okay, and then suppose this is a definition again. It is denoted by L of S, linear span of S. And what is this S? S is the set of all vectors x1, x2, definition x2, so on, x. So all possible combinations alpha I, xi, where I is from 1 to n, all such linear combinations. The set of all such linear combinations is called linear span, right? Then ठीक है बच्चा लोग, समझ आ रहा है? Yes, sir. Right. Then the next definition is linear independent set. What is this linear independent set? Now these are the very important definitions of your this unit, linear dependence and linear independence, right? Here you have the definition linearly independent. Let S is a set of vectors x1, x2, xn. I say vectors means this is a subset of vector space. These are all the elements of the vector space V. It is set
of the subset of vector space, right? Then S is said to be linearly independent if there exist scalars alpha 1, alpha 2, so on, alpha n belongs to F, such that alpha x1, x1, alpha 2, x2, this is nothing but linear combination of xn, right? This is a linear combination, and we have equated this linear combination equal to 0. If in this equation, if I find this equation, then I must get all these scalars alpha 1, alpha 2, so on, alpha n equal to 0. If this equation exists, if such type of linear combinations are available, means again मैं आपको दोबारा इसको आसान तरीके से समझाता हूँ. S is a set of n elements, 1, 2, x1, x2, so on, xn. This is called linearly independent. Okay. If I write any such linear combination, alpha 1 to alpha 2, and when I solve this equation, I always get alpha 1, alpha 2, alpha n is equal to 0. Always. Then this set is called linearly independent set. Right? अपनी रफ कॉपी ले लो. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए, एक बड़ी आसान जो अभी डिस्कस किया. आप उस पे दो वेक्टर्स लिखो, ठीक है? जैसे वही लिखते हैं x1. x1 क्या लिया था हमने? 1 0. और x2 क्या लिया था? क्या था x2 बच्चा लोग? 0 1 0 1, राइट? अब इसको हमने चेक करना है कि क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है. अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ. लिखो अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2. ये बनेगा ना लीनियर कॉम्बिनेशन. तो इसको इक्वेट करना है 0 से. लेकिन आपका वेक्टर स्पेस क्या है? R2. R2 में 0 एलिमेंट कैसा होता है? R2 में 0 एलिमेंट कैसा होता है बच्चा? R2 में एलिमेंट आर्बिट्रेरी फॉर्म में थे ना आपके. इसमें 0 एलिमेंट क्या होगा? 0 0 नहीं. आपको समझ आ रही है? चलो. यस सर. R2 में 0 क्या लिया था हमने? 0 लिया था ना, राइट? यस सर. ठीक है. तो इक्वेशन में आपने लिखा अल्फा x1 प्लस अल्फा 2. अल्फा को x1 क्या है? 1 0. जब अल्फा को 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? अल्फा 1 कामा 0 ऑर्डर पेयर प्लस अल्फा 2 इंटू 0 1. तो क्या मिलेगा? 0 इंटू अल्फा 2. तो वी गेट अल्फा 1 0 ऑर्डर पेयर 1 प्लस ऑर्डर पेयर 0 अल्फा 2. ये मिला ना. एंड इक्वल टू किसके आएगा जे? इट इज इक्वल टू, आई थिंक मैं आपको कोई इसका और मेरे पास नहीं है, यहाँ पे लिखने का भाई नहीं है मेरे पास. So you can write वहाँ पे पेन का ऑप्शन है, तो वहाँ पे यहाँ पे या फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है उसमें, वहाँ पे यू कैन राइट. पेन है लेकिन पेन से लिखना चाहता हूँ. सर ऐप के थ्रू ही वहाँ पे जहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्हाइट बोर्ड. वहाँ पे आप खुद मैनुअली लिख सकते हो बस राइटिंग ओनली. यस सर. शेयर पे व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन नहीं होता. जो होस्ट होता है वो उसी के आ सकता है सिर्फ. आई एम सीइंग हियर. मैं ये लैपटॉप से कर रहा हूँ. आप जूम लैपटॉप में तो ये स्क्रीन शेयर मोबाइल से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं था. ये आपका ओके सर मोबाइल डिवाइसेस पर आता है शेयर का भी. नहीं, शेयर का उस आता है पे ना. लास्ट उसमें में रिकॉर्डिंग नहीं व्हाइट होती. बोर्ड आएगा. उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती. लेकिन Okay. उसमें पता क्या होता है बच्चा? उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें लिखा नहीं जाता. यस तो सर व्हाइट बोर्ड दैट्स आता है ना, उसको जैसे अगर हमारे पास उसमें लिखने के लिए स्टाइलसर बोलते हैं उसको, वो मिल जाए ना अगर हमें, तो वो वर्कआउट कर सकते हैं. अदरवाइज आप ना हैंड से नहीं अच्छा लिख सकते उस पे. वेरी वेरी आप ट्राई करना. ऐसे तो मोबाइल में काफी ऐप्स हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है. ठीक है. ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को. नहीं लिखा आप लोगों ने? यस सर लिखा है. अपने वीडियो जो ऑन कर सकते हैं ऑन करो. मुझे मालूम चले आप लोग क्या कर रहे हो. आई वांट टू सी. करो वीडियोस ऑन अपने, मुझे सभी देखने वीडियो.
जिसका वीडियो चल रहा है वो वीडियो ऑन करो अपने। नहीं हो रहा कोई, नेट स्लो आप लोगों का। चलो एनी हो, ठीक है। तो अल्फा x1 x1 अल्फा 2 x2 बनेगा अल्फा 1 इंटू 1 0 प्लस अल्फा 2 इंटू 0 1। अल्फा को जब 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, अल्फा 1 कामा 0 ऑर्डर पेयर प्लस अल्फा 2 इंटू 0 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 0 अल्फा 2। जब दोनों को प्लस करोगे आपका बनेगा ऑर्डर पेयर अल्फा 1 अल्फा 2, राइट। और इसको इक्वेट किससे करना है, 0 से। और R2 में आपका 0 क्या होता है, 0 0 ऑर्डर पेयर 0 0। ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स हैं तो 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, है ना। तो इससे आपको मिल जाएगा अल्फा 1 भी 0 बन जाएगा, अल्फा 2 भी 0 बन जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये आ गई लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझो। कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आपका वेक्टर्स का बने, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, जब उस लीनियर कॉम्बिनेशन में जब आप अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे आपके सभी अल्फा 0 आएंगे। अगर इसमें से एक भी अल्फा नॉन 0 आ जाए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। यू गॉट इट, ठीक है। ये आगे हमने एग्जांपल्स बतानी है, उसमें आपको क्लियरिटी और डिटेल में हो जाएगी। इसमें ये आगे एग्जांपल्स की हुई है, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आगे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना हमने पहले। मैं लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ। सेम सेट लिया है x1 x2 xn, ठीक है। देन इट इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स नॉट ऑल 0, लिखा है ना। जहाँ पे क्या था ऊपर वाली डेफिनेशन में ऑल आर 0, इसमें से एक भी नॉट 0 हो जाए था तो क्या आ जाएगा, नॉट ऑल 0, है ना। तो लीनियरली डिपेंडेंस बन जाएगा, राइट। तो जब भी आपको इक्वेशंस मिलेंगी आप उन इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर आपके स्केलर से 0 आते हैं तो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जब आपके स्केलर्स नॉन 0 आते हैं तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत इजी है, आगे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब आगे इसने दिया क्वेश्चन, जो दिया एग्जांपल, राइट द वेक्टर 1 -2 5 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 1 1 1 1 2 3 एंड 2 -1 -1 इन R3। वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस इज R3, ठीक है। हमने इन सबको लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर। मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है 1 -2 5, इसको इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। राइट, सी द सॉल्यूशन। बी ए ले लिया जिसको लिखना है, x1 नाम दे दिया हमने 1 1 को, एक को x2 का नाम दे दिया, एक को x3 का नाम दे दिया, राइट। Yes. Then we have to write B as a linear combination. तो इसको linear combination की फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा x1 बीटा x2। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 लिखते हैं तो अगर अल्फा बीटा गामा लिखते हैं। अब हमारा काम क्या है, जहाँ पे बेसिकली मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी। अगर ये मिल जाती हैं तो इसका मतलब हम इसको कर सकते हैं, राइट। Yes, sir. Yes, sir. We can write it. अगर ये मीटिंग हमारी ओवर हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट होती है, तो हम दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर देंगे अभी, ठीक है। नहीं सर, नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। नहीं है ना, है, मेरे को मैसेज आया है। मेरे को मैसेज आया है कि टाइम लिमिट नहीं है। दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, वो होस्ट के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट शिफ्ट हो सकती है। टाइम लिमिट अब नहीं रही, वो आया अभी मैसेज। चलो ठीक है, ओके, हाँ मेरे को आ गया डन। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, फिर ये ऑर्डर पेयर्स है, ऑर्डर पेयर में अल्फा से मल्टीप्लाई करना, सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। फिर इन 3 ऑर्डर पेयर को हमने ऐड किया, एक नया एलिमेंट बन गया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। फिर ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, है ना। तो ये 3 इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, है ना।
Yes, sir. वेक्टर में पढ़ी, मैट्रिक्स में Yes. पढ़ी होगी, Yes, है ना? sir. Yes, sir. अब इस तीन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है इसका वैल्यू निकालने के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, आप कोई भी मेथड लगाओ जहाँ पे इसकी वैल्यू आती है अल्फा की -6, बीटा की 3, गामा, इसको आप घर में ये शॉर्टकट दिया है जहाँ पे, है ना, इसको अपने तरीके से निकाल Yes. प्लस माइनस करके ना निकालने की कोशिश करना, ठीक है? सामने ऐसे ही करेंगे, Yes. राइट? दिस इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट ऑन एट योर होम, ठीक है? Okay, sir. तो जहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई, तो फिर आपने क्या करना है, जो पहले वाली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन था हमारा, जहाँ इसी इक्वेशन में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। इसका मतलब ये जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. राइट। पहले एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट में, फिर आगे आऊंगा। ये एग्जांपल देखो, ठीक है? जहाँ पे क्या दिया, Rn हो गया वेक्टर स्पेस एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ n एलिमेंट्स, ठीक है? जहाँ पे इसने सेट दिया है, उसका पहला एलिमेंट 1 रखा है, बाकी सारे 0 हैं। दूसरे में दूसरा Yes, एलिमेंट 1 रखा है, बाकी सारे 0, सो ऑन, ठीक है? लास्ट में लास्ट एलिमेंट 1 रखा है, बाकी सभी, इनको नाम दे दिया हमने E1 E2। हमने बताना है जो सेट है E1 E2 का, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, अल्फा 1 E1 अल्फा 2 E2 सो ऑन, है ना? जिनकी वैल्यू Yes, sir. की जब अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सारे 0 हैं, एक ही 1 है पहला, तो अल्फा 1 आएगा, बाकी सारे 0 आ जाएंगे, ठीक है? इसमें अल्फा 2 को जब मल्टीप्लाई किया, सेकंड एलिमेंट 1 Second है, one. सेकंड पोजीशन पे आएगा, ऐसे ही नेक्स्ट आएगा थर्ड पोजीशन पे, लास्ट वाला आएगा Yes, sir. nth पोजीशन पे, ठीक है? And finish. हाँ, और जो Yes, sir. पहला एलिमेंट अल्फा 1 पे आया, बाकी हर जगह वहां पे 0 आएगा। जब ऐड करेंगे तो इस फॉर्म आ जाएगी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, है ना? तो जब इसको 0 से इक्वेट किया तो Yes, sir. वी फाइंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा सभी 0 आ गए। इसका मतलब ये लीनियरली, मैं आपको इसी तरह की एग्जांपल दे रहा था, लेकिन R2 में उसमें 2 एलिमेंट आ रहे थे, ठीक है? तो ये आपका Yes, sir. इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा, राइट? ठीक है? तो ये Yes, sir. एग्जांपल है लीनियरली इंडिपेंडेंट की। उसके बाद एक रिजल्ट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए थ्योरम। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कोई ज्वाइन कर रहा है, ए बी सी, तो अब नेक्स्ट जो थ्योरम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जामिनेशन आल्सो, show that the linear span of subset S of a vector space, linear span किसका है, सेट का, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस का, is the smallest subspace containing S। आपने सबस्पेस में पढ़े हुए हैं, है ना? Yes, sir. तो सबस्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है यूनिट 3 में। तो जो लीनियर स्पैन होता है, ये भी सबस्पेस होता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि शो दैट लीनियर स्पैन इज ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, और जहां पे इसने सबस्पेस तो लिखा है, और बोलोगे स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस, मतलब जितने भी सबस्पेस एस को कंटेन करते हैं, उसमें जो लीनियर स्पैन है वो सबसे छोटा होगा, ठीक है? तो पहले Yes. तो हमारा काम है कि लीनियर स्पैन को सबस्पेस बताना। तो लीनियर स्पैन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एस लिया, एस में एलिमेंट लिए हमने, एस में एलिमेंट ले लिए x1 x2 so on xn, ठीक है? तो लीनियर स्पैन की डेफिनेशन यही थी पहले भी, ऑल सच लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी बन सकते हैं उसको लीनियर स्पैन बोलेंगे, ठीक है? जहाँ पे xi क्या है, दैट इज बिलोंगिंग टू s, क्योंकि s के एलिमेंट है और अल्फा फील्ड का एलिमेंट है। अब मुझे बताना है कि ये क्या है, सबस्पेस है। सबस्पेस का क्राइटेरिया मेरे पास है, ठीक है? तो मैं 2 एलिमेंट लूंगा, किसमें, लीनियर स्पैन में। तो लेट x, y बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन में एलिमेंट कैसे हैं हमारे पास, कैसे एलिमेंट है लीनियर स्पैन में? हाँ जी, लीनियर स्पैन में एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है ना? Yes, sir. Yes, sir. स्पैन में जो भी एलिमेंट्स हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। x बाई ls में लिए, इसका मतलब x जो होगा ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगी, किसकी, xi की, अल्फा i लिख दिया, और जो y है वो भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये
एक्स वाई जो होंगे इस फॉर्म के होंगे, ठीक है। फिर एक फील्ड के एलिमेंट लेते थे, अल्फा एक्स में क्राइटेरिया था अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर मैं बता Yes, दूं sir. ये भी इसमें तो सबस्पेस हो जाएगा। तो फिर मैंने एक्स वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, इस फॉर्म में आ गया अल्फा इनटू दिस। अब जे अल्फा और अल्फा आई में कंबाइन कर सकता हूँ, क्योंकि अल्फा कर सकते हैं और बीटा आई को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेज में क्या, जे एक्स आई तो कॉमन है, जे कॉमन ले लिया। तो देखो अल्फा और अल्फा आई जो फील्ड के एलिमेंट है, बीटा और बीटा आई फील्ड के एलिमेंट है। दो फील्ड के एलिमेंट मल्टीप्लाई करो फील्ड में रहते हैं, उनको ऐड करो वो भी फील्ड में रहते हैं। तो फील्ड में जो रहते हैं। ये भी स्केलर ही रहा, इसका मतलब एक नया लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया तो इसका मतलब ये भी इसी का एलिमेंट होना चाहिए लीनियर स्पैन का, ठीक है। यस सर। तो सब स्पेस प्रूव हो गया, इट मींस दिस इज सब स्पेस। अब हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या करना है, देखो जो सबसे एस, क्योंकि एल एस जो है लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, सेट एस का, एस हमेशा इसमें कंटेंट होगा। क्यों, देखो इसके प्रूफ करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, मैं इस एक्स को लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स। जब 1 इंटू एक्स बना तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, है ना। जब Yes, लीनियर sir. कॉम्बिनेशन बन गया तो ये लीनियर स्पैन में आ गया। तो एक्स मैंने यस सर। एस में लिया और ये एल एस में आ गया, इसका मतलब एस इज कंटेन्ड इन एल एस, राइट। यस सर। अब मुझे बताना है एल एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। स्मॉलेस्ट सबस्पेस। हाँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आई टेक सम अदर सबस्पेस, लेट डब्ल्यू इज अनदर सबस्पेस, ठीक है। और मुझे बताना है कि एल एस जो है डब्ल्यू से छोटा होगा, है ना। सपोज लेट डब्ल्यू इज आर्बिट्रेरी सबस्पेस कंटेनिंग एस, वी शो दैट एल एस इज कंटेन, और एल एस डब्ल्यू से छोटा हो जाए तो एल एस स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यस सर। Yes, sir. और जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लेट, ये जो है ना, जहाँ पे करेक्शन कर लेना बच्चा, जहाँ लिखा लेट एक्स सबसेट ऑफ एल एस लिखा है ना, आपको कर्सर दिख रहा है बच्चा स्क्रीन पे, Yes, sir. यस सर। इधर लिखा है एक्स सबसेट, ये एक्स सबसेट नहीं आएगा, ये आएगा एक्स बिलोंग्स टू एल एस, क्योंकि एलिमेंट है ना, एलिमेंट सबसेट नहीं होता, एलिमेंट बिलोंग्स टू आएगा। ये बात समझ यस में? यस सर। ये आएगा एक्स बिलोंग्स टू एल एस। जब एक्स एल एस को बिलोंग करेगा, इसका मतलब एक्स क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एक्स, है ना। आई कैन राइट यस सर। एक्स एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा आई एक्स आई, ठीक है। नाउ ये जो एक्स आई है ये किसके एलिमेंट है, ये एस में, और एस तो डब्ल्यू में भी कंटेन्ड है ना। यस सर। इसका मतलब ये एक्स आई डब्ल्यू में भी कंटेन्ड हो गए, इट मींस अल्फा आई एक्स आई बिलोंग्स टू डब्ल्यू बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, Yes, sir. और डब्ल्यू सबस्पेस गिवन है आपको, है ना, ये आपको यस सर। सबस्पेस गिवन है। Even. काम कर दिया, मतलब डब्ल्यू कंटेन्स एल एस, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना। ये देखो, ये था एल एक्स, ये एल एस का एलिमेंट था, लेकिन ये जो एक्स आई है ये एस में है, लेकिन डब्ल्यू भी एस को कंटेन करता है, इसलिए ये एक्स आई डब्ल्यू में भी आ गया, और डब्ल्यू सबस्पेस गिवन है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी डब्ल्यू में आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन किस में आ गया, डब्ल्यू में आ गया। और जहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन किस में है, ये एक्स किसका एलिमेंट है, एल एस का, इसका तो एल एस भी डब्ल्यू में कंटेन्ड हो गया, और यही मुझे प्रूव करना था। इट मींस देयरफॉर डब्ल्यू कंटेन्स एल एस, एस hence ls is the smallest subspace सबस्पेस containing ऑफ ठीक है। आगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड, अगर s इसमें कंटेंट है तो इसका स्पैन भी इसमें कंटेंट होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये लीनियर स्पैन का कंसेप्ट अगर समझ आ जाएगा तो सिंपल लगेंगे आपको, ठीक है। ओके, अगर कोई यस डाउट होगा यस सर। तो आई विल हेल्प यू, ठीक है। ओके देन वी मूव, ये एग्जांपल हमने अभी डिस्कस करी, ठीक है। अब ये दोबारा एक क्वेश्चन आ गया, शो दैट द वेक्टर्स दिस वेक्टर 0 2 -4 1 -2 -1 दिस इज ए लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट। ये किसकी एग्जांपल आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, पहले इतना ही पढ़ते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। जब लीनियर डिपेंडेंट की बात आएगी मैं क्या करूंगा, इनको नाम दे दिया मैंने x1 x2 x3, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अल्फा एक्स आई बीटा एक्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे पहले किया। जब आप इसको सॉल्व करोगे
आपको अल्फा बीटा ये सभी क्या मिले, देखो जहाँ पे अगर सॉल्व करो तो अल्फा क्या आ रहा है, इक्वल टू गामा इक्वल टू माइनस बीटा आ रहा है। तो ये Yes. सभी मतलब ऐसी इक्वेशन बन रही है, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही। जब प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली हम इसको ले देते हैं सपोज इट इज इक्वल टू के, तो वहां से हम सारी वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो जब ये सपोज की जाती है ना वैल्यू, इसका मतलब ये आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या रखनी है, अल्फा और गामा की सेम वैल्यू आएगी। सपोज मैं लेता हूँ अल्फा 2, तो गामा भी 2 आएगा, तो बीटा क्या आएगा, बीटा के नीचे माइनस लगा हुआ तो बीटा -2 बन जाएगा, है ना। तो नॉन जीरो वैल्यूज हम ले सकते हैं। जब अल्फा बीटा गामा नॉन जीरो आ सकते हैं, इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। इट मींस देयर इज पर्टिकुलर वैल्यू ले ली इन्होंने यहाँ पे, देखो जहाँ पे इन्होंने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ली थी, सभी को के पुट किया एक इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया इनको इधर इक्वेशन में, और जो वैल्यू निकाली, देखो फ्रॉम 3 लिखा है ना यहाँ पे, 3 कौन सी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो 0.k.0 आ गया। दिस प्रूव्स दैट आर कंसिस्टेंट, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते थे, इसलिए इसने जहाँ पे क्या लिखा k = 1 ले लो, k 1 लोगे और गामा और अल्फा सेम वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर डिपेंडेंट हो गया। ऐसे अब आगे क्या दिया था, आल्सो एक्सप्रेस 0 to -4 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट, है ना। इसमें मैं बच्चा आपको बताता हूँ, जब लीनियरली डिपेंडेंट हो तो हम एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन में हमेशा लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसी इक्वेशन को, जहाँ पे इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दिया है इसने, ये इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को सॉल्व किया इसने, वैल्यू दे दी ना मैंने, के की वैल्यू क्या दी, 1 दी ना, तो ये के अल्फा 1 बीटा गामा 1 बीटा -2 वैल्यू दी, जहाँ से इसने जो निकालना था उसको सेपरेट कर दिया x1 को, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया उन लोगों का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 1x आगे क्या होगा x³ सो ऑन, इट लीनियरली independent. Li means linearly independent subset of vector space V of polynomials. The vector space क्या है, set of all polynomials, ठीक है, जितने polynomials होते हैं उनका। तो फिर ये इसने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया इसका, है ना, 1 से स्टार्ट है, अल्फा 1 1 अल्फा 2x अल्फा 3x के पॉलिनोमियल बन गया। और पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल कैसे होता है, वो ऐसे होता है 0 1 0x है ना। पॉलिनोमियल इक्वल कब होते हैं, जब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ सेम डिग्री इक्वल होते हैं ना। तो अल्फा 1 मिल जाएगा 0, अल्फा 2 आ जाएगा 0, सारे 0 आ जाएंगे, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा, राइट। सेम ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल भी दिए पर जहाँ पे इनकी कंडीशनिंग की है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखो लास्ट वाला एक्सरसाइज, ये एग्जाम में आता है। BF is a vector space over field F, and show that set is singleton non-zero vector. क्या है, एक सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है, only one element, singleton non-zero, तो नॉन जीरो एलिमेंट है। सिंगलटन एक एलिमेंट हो नॉन जीरो, वो सिंगल एलिमेंट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट बाय, देखो ये हमने एक सिंगल एलिमेंट ले लिया नॉन जीरो, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, a × x लिखा, x जो है ये जीरो है ही नहीं, तो ये इक्वेशन जीरो कब बनेगी, जब आपका a क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि x नॉन जीरो गिवन है। तो इसलिए इस तरह एक एलिमेंट के लिए जो साथ में स्केलर होगा वो हमेशा जीरो बनेगा। जब स्केलर जीरो बन गया तो ये क्या बन गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिंगल सेट नॉन जीरो एलिमेंट, सिंगल नॉन जीरो एलिमेंट सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही इसी का दूसरा पार्ट, दैट इज इसी सेकंड पार्ट, सेट विद वन जीरो वेक्टर, तब भी सिंगल है बट वो जीरो है। जब वो जीरो होगा फिर क्या होगा,
नहीं सॉरी, ये कुछ और लिखा है। चलो हम जीरो को केस डिस्कस करते हैं। एक हो गया नॉन जीरो एलिमेंट, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर जीरो होगा तो हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे a इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स अगर जीरो है तो a नॉन जीरो हो सकता है ना। Yes, sir. तो अगर सिंगलटन जीरो हो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर सिंगलटन नॉन जीरो हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। राइट। अब ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे इसने लिखा है सेट विद वन ऑफ द वेक्टर जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब आपके पास वो 10 एलिमेंट का सेट है, ठीक है, x1 x2 so on, लेकिन उस 10 में से एक एलिमेंट ऐसा है वो जीरो है। क्या है? Zero. जीरो है। तो ये उसने एलिमेंट लिए x1 x2, इसमें से एक जीरो है, ठीक है। सपोज x के जीरो है, राइट। तो x की अगर जीरो है तो 1 डॉट x के क्या बनेगा? जीरो। Zero. लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा मैं सभी को जीरो रखता हूँ, लेकिन जो जीरो वाला है उसके साथ तो मैं 1 लिख सकता हूँ ना। Yes, इसका sir. मतलब सारे स्केलर जीरो नहीं आए। नहीं। और मैंने अभी बताया सिंगलटन जीरो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। वो सिंगलटन जीरो अगर बड़े सेट में डाल दें तो बड़ा सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। यू गॉट इट? यस सर। ठीक है। Sir, last step repeat करना. मतलब इसमें इस सेकंड पार्ट में उसने क्या दिया है, एक एलिमेंट जीरो रखा है, बाकी सारे नॉन जीरो। सपोज अगर एक किसी बड़े सेट में एक जीरो एलिमेंट एंटर कर जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा मैं सबके साथ जीरो लिख सकता हूँ, x1 x2। सपोज x के वाला Yes, जो sir. है ये जीरो है, इसके अगर ये खुद Yes, जीरो sir. है तो इसको साथ में 1 लिखूंगा तब भी जीरो बनेगा ना। Yes, sir. लेकिन स्केलर तो नॉन जीरो आ गया ना अल्फा। Yes, sir. अगर सारे अल्फा नॉन जीरो हो तभी इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। Yeah. बट आई एम गेटिंग नॉन जीरो स्केलर सो इट इज रियली डिपेंडेंट। Okay. हाँ, इसलिए रियली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट। आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर एक सेट लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है, लीनियर डिपेंडेंट मतलब क्या हो गया कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे, है ना। तो उसका सुपर सेट हो गया उसको कंटेन करता है। उसका बड़ा सेट जो होगा वो भी हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। Dependent होगा. ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दिया है, एस लिया एन एलिमेंट लीनियर डिपेंडेंट है, ठीक है। एक बड़ा सेट लिया, इसमें इसने y1 से लेकर ym ऐड किया, सुपर सेट बन गया। फिर इस बड़े सेट की Yes, लीनियर sir. कॉम्बिनेशन ली इसने, ठीक है, एल्स एंड Yes, sir. ये जो बड़े एलिमेंट जब ज्वाइन किए, लेकिन जो पुराने वाला सेट है इसी देखो एक नॉन जीरो चाहिए, वो तो इससे मिल जाएगा मुझे अल्फा 1 से अल्फा n तक, है ना। तो हमारा Yes, sir. रिजॉल्व, राइट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर का लास्ट लेक्चर थ्योरम की फॉर्म में है। VF ये वेक्टर स्पेस और फील्ड F, right? Then a subset S of linearly independent, a subset S of vector space linearly independent if and only if each vector can be uniquely represented as linear combination of the elements of Yes. net। आवाज आ रही है? चलो Yes, sir. राइट। ये सेट दिया आपको x1 x2 xn, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, ठीक है। और जो कह रहा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, आपने बताना है कि each vector in ls हो गया लीनियर स्पैन, है ना। कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, मतलब वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट जो है उसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो वी सपोज S is linearly independent and X is some element of linear span, और कह रहा है इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इसकी दो रिप्रेजेंटेशन है, which suppose on the contrary basically, ठीक है। Suppose it has two expressions of this form, एक हो गया अल्फा xi, दूसरा आ गया बीटा xi। इसने बोला हम कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। मान लेते हैं दो आ गए, दो हैं, ठीक है। अगर आप देखो अल्फा i xi, ये भी x की वैल्यू है और y की वैल्यू है बीटा xi, ठीक है। Yes, sir. चलो ये मैं आपको
ये जहाँ पे लिखा है ना उसको करेक्शन कर लेना, जहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, जहाँ लिखा ना, देखो क्या क्वेश्चन है, फिर समझाता हूँ मैं आपको। S is linearly independent, X belongs to LS be such that it has two expression। किसके हैं two expression? X के। Yes. ये भी X है, जहाँ लिखा है पाई, जहाँ भी क्या आएगा X। ये X की दो कॉम्बिनेशन है, ये नोट कर लो अपने पास, 101 पेज नंबर है लिखा हुआ ऊपर। तो जहाँ पे आपने नीचे जहाँ पे X है, जहाँ बाई की जगह जहाँ पे X लिखना आपको, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Excuse me, sir, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आई हो? इधर भी नहीं आ रही। यस सर, अब आई। तो ये जहाँ पे आपने बाई की जगह क्या करना है X। सर, Yes, sir. सर लेकिन हाँ जी बेटा बोलो। सर लेकिन ये वाई आएगा ना? हाँ जी, नहीं, X ही आ रहा है उधर भी। X नहीं। के दो expressions है ना। वो समझ X के ले। दो हैं। पता है क्या, ये हाँ आगे जो इसका आगे वाला पेज है ना, उसमें इन लोगों ने बताया हुआ है x इक्वल टू y एंड हेंस यूनिक। तो हम अलग अलग एक्सप्रेशन देंगे ना, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, यूनिक है, तो y ही लेना पड़ेगा। नहीं, एक X का सिंगल का ही दो ले लिए ना उन्होंने, दो वैल्यूज। अरे वो हेलो, डिनोट किया हुआ है, जैसे मर्जी कर लो। हाँ आप वो भी मेरी है। बात सुनो कह पहले रही तो। हूँ। देखो आप इधर पढ़ो ध्यान से, ये देखो लेट लिखा है ना, लेट x बिलोंग्स टू L of S be such that it has two expressions। Two expressions, yeah. x के भाई लिखा हुआ है Yes, sir. बट मुझे ये कंफर्टेबल अच्छा नहीं हाँ। लगता भाई यहाँ, क्योंकि इसने लिखा है x दो एक्सप्रेशन है, तो ये भी x दो, आएगा हाँ। और ये भी X है। मतलब हम कहीं समटाइम्स हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं एज पर सुटेबिलिटी। ठीक है, तो दोनों x की वैल्यू है, Yes, sir. इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल आ गया, Equal आएंगे। Sir, ये इक्वल आ गया excuse ना? me, sir. हाँ जी तो बच्चा, वो तो आगे हमने प्रूफ किया है ना। Excuse me, sir. सर वहाँ पे हमें मेंशन करना है ना कि यूनिक है, तो मतलब अगर हम दोनों सेम ले लेंगे तो वहाँ पे यूनिकनेस प्रूफ नहीं होगी, इसलिए हमें दोनों अलग अलग लेने पड़ेंगे। नहीं यार मेरी बात समझे बच्चा। देखो ये दोनों x की वैल्यूज हैं, x के देखो x के दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना हमारे सर पास। हाँ सर, थ्योरम में वहाँ पे लास्ट में लिखा ना कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब हमें यूनिक एलिमेंट्स प्रूफ करने हैं, तो इसलिए हम x और x डैश ले सकते हैं या y मतलब ले सकते हैं। अगर लीनियरली x जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वेक्टर स्पेस के, उसकी इसका जो s का स्पैन की फॉर्म में जब मैं उनको लिखूंगा, उनका रिप्रेजेंटेशन यूनिक आएगा। ये यूनिक क्यों आता है? हाँ यूनिक आता है बिकॉज ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, हमने इसमें सपोज किया x के दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन आ गया, मतलब एक्सप्रेशन मींस स्पैन में लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, एक अल्फा आई एक्स आई एक बीटा आई, ये सेम नहीं है, एक जगह अल्फा लिखा हुआ है, एक जगह बीटा लिखा हुआ है, राइट? बीटा लिखा है, दे आर डिफरेंट, बट दोनों वैल्यू किसकी है? x की। यस ठीक है, इसलिए तो दोनों x की वैल्यू है, तो दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल आ रहे हैं। इक्वल आने का मतलब ये नहीं तो है सर उसको हम x1 x2 करके ले लेते हैं ना। y नहीं लेना हमने सर, एक्चुअली वहाँ पे यूनिक है, तो दोनों एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन अगर हम सेम करेंगे तो वो प्रॉब्लम बनेगी तो ना। सेम नहीं है, सब में x बिलोंग कर रहा है, बट रिप्रेजेंटेशन सेम थोड़ी, मेरी बात तो हमने आगे सेम करनी है। ये मैं लिखा 1 + 4 कितना आया वैल्यू? 5। मैंने लिखा 2 + 3 5। क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम है? नो सर, नहीं है ना? नो सर, सेम इज हियर, दोनों x की वैल्यू हैं, बट दोनों x अगर x इक्वल है, दोनों x अब इक्वल कैसे आएंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने क्या किया, इक्वलिटी के इधर लिया, इसको जो माइनस हो गया,
Yes, समेशन sir. अल्फा आई, अब एक्स आई सेम है तो ये बन गया अल्फा आई माइनस बीटा आई और एक्स आई बन गया, Yes, ठीक है। sir. और जो एक्स आई है, एक्स आई के जो सेट है दिया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन, जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपका देखो, जब दोनों को माइनस किया इक्वल टू 0 आ रहा है ना, और जब ये 0 Yes, आया sir. तो सिंस इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट अल्फा आई माइनस बीटा आई सभी क्या आना चाहिए 0। 0। तो जब ये 0 आएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा ही हो गया। Yes, sir. जब ये आपस में इक्वल हो गया इसका मतलब बोथ एक्सप्रेशंस आर सेम। जहां इस स्टेप को नहीं लिखो आप x इज इक्वल टू y, ठीक है। इसके बाद लिखो इट मींस x हैज यूनिक एक्सप्रेशन। क्या लिखोगे? X is unique expression. Unique expressions. दैट इज योर, एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। यू गॉट इट? Yes, sir. इंडिपेंडेंट की वजह से एक्सप्रेशन सेम आया, अदरवाइज एक्सप्रेशन सेम नहीं आता है। मैंने एग्जांपल दिया अभी आप लोगों को, ठीक है। अब कन्वर्स क्या है? Yes, sir. सपोज ईच एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड यूनिकली। हर एक एलिमेंट क्या है? यूनिक मींस एक एलिमेंट का एक ही रिप्रेजेंटेशन है। आपने बताना है Yes, sir. लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। हमने शो बताना है ऐसे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैंने स्केलर लिए अल्फा 1 अल्फा 2, एक एक्सप्रेशन लिया अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 x इक्वल किससे किया 0 से। लेकिन 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0x1 0x2 so on 0x लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. अगर आप Yes, ध्यान से sir. देखो अल्फा वाला एक्सप्रेशन भी x1 से लेकर xn का, ये भी x1 से xn, और अभी ऊपर क्या लिखा है ईच एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड यूनिकली। ये यूनिक नहीं रहा एक्सप्रेशन, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसका मतलब जब दोनों को इक्वेट करेंगे यूनिक, क्योंकि सिंस रिप्रेजेंटेशन zero आएगा। वो भी 0 आएगा। मस्ट बी इक्वल टू अल्फा 2, सारे क्या होने चाहिए 0। 0. Linear 0 है ना, independent आ जाता ये है। लीनियरली इंडिपेंडेंट। Yes, sir. Yes, sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. एनी डाउट? अब किसी को कुछ पूछना? No, sir. No, sir. हाँ बच्चा, पूछना है किसी ने कुछ? No, sir. No, sir. क्या आज का लेक्चर अच्छा रहा, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हम Yes, कोशिश करेंगे रोज आपका एक क्लास ऐसे रखें और आपको समझ भी आए और आपको प्रॉब्लम भी ना आए, Yes, sir. Okay, sir. राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बाकी लोगों को बोलो ज्वाइन करें। आज 14-15 लोगों ने ही ज्वाइन किया, रेस्ट ऑफ द क्लास इज नॉट अवेलेबल, आई डोंट थिंक व्हाई, ठीक है। तो Yes, ठीक है, sir. so I complete stop this class here. Thank you all of you, ठीक है। Thank you, sir. ओके Yeah. Thank you, sir.